Hello everyone. In our today's lecture of cash budget, we are solving the practical number 31. From the following particular of the Amardeep Limited, prepare a cash budget for the 3 months ending on 31st/6/2009. Month, purchase, opening stock and overhead. Only 3 information is given. So opening stock and purchase is given, sales is not given. So out of that we have to first find out the sales. Then additional information. Cash budget balance 1/4/2009 is 1 lakh rupees. Rate of gross profit on sales 33 1/3%. 60% of purchase and sales are on a credit. The rate of the cash discount for the cash purchase and cash sales is a 5%. Time lag. Credit purchase 1.5 month. Overhead 1/4 month. Quarterly depreciation on a fixed asset is 45,000. It is included in the overheads. That means depreciation are included in the overheads. So we have to deduct the depreciation just because the depreciation is not paid in the cash. Then 60% of the credit sale are collected in the next month after the sales, 30% in second month and remaining in the third month. Quarterly interest on a 10% debentures of rupees 3 lakh is payable in April and July. The estimated monthly salary 10,000 which is paid on a 7th day of the next month. Salary will increase at the rate of the 10% from the month of the March. So let's calculate this practical number 31. First we have to find out the sales value. So let's start the calculation for the sales. Calculation of sales. First we are starting with the March sale. March, just because we need this information. What is given? Purchase and opening stock is given. So we can find out the cost of the sales. Cost of the sales is equals to opening stock plus purchase minus closing stock, in which we can find out the cost of the sold goods, right? So how many goods are sold? Opening stock plus purchase minus closing stock. Only opening stock is given. Only opening stock is given. So we know that opening of the April, it is the closing of the March, right? So in this way we have to find out the cost of purchase. March opening stock is given 25,000 plus purchase 3 lakh rupees minus closing stock. Closing stock, that means opening of the April, that known as closing of the March. So minus 37,500. So 25,000 plus 3 lakh minus 37,500. 2,87,500. This is the cost of sale, and in this we add the profit, then we will get the sales value. Sales value of the March, right? So 2,85,500 is the cost of sales. Then we will add the profit, and then we will find the actual sales made. So rate of the gross profit is given 33.331/3. That means 33% on sales. Gross profit percentage given on the sales, but we have a cost. So we are assuming that if the selling price is 100, then profit is 33.33%. So 100 minus 33.33, it will get 66.666% is a cost price. So we are assuming 100 is the selling price minus profit, we get the cost price. So whenever the cost price is 6.66%, at that time 2,87,500 है, तो 100% पे या तो 33.33% पे प्रॉफिट कितना होगा. तो हम ऐसे फाइंड करेंगे
66.666 और 67 पे कॉस्ट है 2,87,500, तो 100 पे कितना होगा? 4,31,250। आंसर क्या आ रहा है? 4,31,250. That is the sales value of March. सेल्स वैल्यू ऑफ द मार्च. ऐसे ही अप्रैल, मई, जून और जुलाई का फाइंड करना है सेम वे से. तो और एक बार समझा देती हूँ अप्रैल का. अप्रैल का कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Opening of the April is given 37,500 plus 3,50,000 purchased minus closing stock is the opening of the May, that means 62,500. So 37,500 plus 3,50,000 minus 62,500. We will get 3,25,000. But this is the cost price. We have to include profit and then we will find the sales value of the April. So as we have earlier calculated at a 6.66%, it is 2,87,000. So here we will calculate 6.66% पे 3,25,000 है, तो 100 पे कितना? तो सेल्स आएगा फॉर अप्रैल मंथ, सेल्स आएगा 4,87,500. दिस इज फॉर अप्रैल. ऐसे ही मई का फाइंड करेंगे. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. ओपनिंग ऑफ द मई इज 62,500 प्लस 4 lakh माइनस क्लोजिंग स्टॉक 75,000. 3,87,500. सो सेल्स वैल्यू फाइंड करते हैं 3,87,500. इट इज़ अ 6.666. देन 100% पे कितना? सो कैसे करेंगे? 3,87,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 6.6. पूरा अमाउंट लिखना है तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 5,81,250. 5,81,250. देन जून का वैसे ही करेंगे और जुलाई का भी हम वैसे ही करेंगे. जून का कैलकुलेट किया तो आंसर आया टोटल सेल 6,84,375. अब जुलाई का करेंगे तो जुलाई का हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि जो अगस्त का हमें ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया गया है, तो जुलाई का हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो कोई बात नहीं, हम जून तक कैलकुलेट किए हैं. तो मार्च का सेल्स आया है 4,31,250. देन अप्रैल का सेल है 4,87,500. मई का सेल है 5,81,250 एंड जून का सेल है 6,84,375. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन. वी आर स्टार्टिंग विथ ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस इज 1 lakh for April month. Then we will add receipts first, cash sales. अब कैश सेल्स के लिए अमाउंट क्या दी गई है देख लेते हैं. 60% of the purchase and sales are on credit and the rate of cash discount for the cash purchase and cash sales is 5%. That means 60% क्रेडिट पे है तो 40% किस पे होगा? ऑब्वियसली कैश पे होगा.
और कैश का 40% कैश सेल्स में 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो कैश सेल्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। अप्रैल मंथ का टोटल सेल है 4,87,500। सो अप्रैल मंथ का सेल है 4,87,500, उसका 40% करेंगे तो आंसर आएगा 4,87,500 40%, 1,95,000। उसमें 5% हम डिस्काउंट देंगे, सो 5% डिस्काउंट दिया 9,750 का, रिमेनिंग बैलेंस आई 1,85,250 कैश सेल्स। 40% कैश है और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। समझ में आया? तो बैलेंस आई 1,87,250 85,000 सॉरी। सिमिलरली मे का चेक कर लेते हैं। मे की वैल्यू है 5,81,250, उसका 40% कैश सेल्स, 5% डिस्काउंट, आंसर आया 2,20,875। सिमिलरली जून का करेंगे। जून की वैल्यू है 6,84,375 375 के 40%, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,60,063 62.5, दैट मीन्स 63 2,60,063। ये आई कैश सेल्स की बारी। अब बारी आएगी क्रेडिट सेल की। क्रेडिट सेल की टाइम लैग पीरियड क्या है? टाइम लैग पीरियड है 60% आर इन द मंथ आफ्टर द सेल, 30% इन सेकेंड मंथ एंड रिमेनिंग इन द थर्ड मंथ। सो अगेन कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें पहले करना है अप्रैल मंथ का, तो 60%, 30% सॉरी yes 30% and remaining, so 60 plus 30 90, remaining is 10%. so टाइम लैग पीरियड है, हमें कैलकुलेट करना है अप्रैल के लिए। तो 60% ऑफ द मार्च विल पेड इन अप्रैल, 30% ऑफ द फेब्रुआरी पेड इन अप्रैल, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। सो कैलकुलेट करेंगे अप्रैल, यहाँ पे मार्च, यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे जनवरी। तो ऐसे ही 3 मंथ का टोटल मिला के अप्रैल में मिलेगा। बट हमें जनवरी और फरवरी की डिटेल्स दी नहीं गई है, सिर्फ मार्च की है, तो सिर्फ मार्च का इंक्लूड कर लेते हैं। 60% ऑफ द मार्च, मार्च का कितना है 4,31,250, उसमें से 60% है वो क्रेडिट सेल है, उसका भी 60% अप्रैल में मिलेगा 1,55,250 1,55,250। सो यहाँ पे अप्रैल में आएगा 1,55,250, राइट। अगेन अब बारी आएगी मई की। तो मई में स्टार्ट होंगे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, यानी कि फरवरी का 30% मई में मिलेगा। फरवरी का तो हमें पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मार्च का 30% एंड अप्रैल का 60%। तो अप्रैल का है 4,87,500 का 60% का 60%। सिक्सटी % क्रेडिट सेल है, इसलिए हमने पहले 60%, उसका भी 60% फर्स्ट मंथ में मिलेगा, इसलिए 60 का 60 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। और मार्च में, मार्च का सेल है 4,31,250 का 60%, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, उसमें से 30% मिलेंगे बाद में, वो हो जाएगा 7,7,625।
plus 1,75,500. Total is 2,53,150. ऐसे ही हम जून का कैलकुलेट करेंगे, तो जून का आंसर पहले मई का लिख लेते हैं 2,53,125. देन जून का भी वैसा ही कैलकुलेट करेंगे, जो जून का आंसर आएगा 3,22,875. राइट. और कोई भी रिसिप्ट नहीं है, इसलिए टोटल लिखेंगे 4,40,500 ए माइनस पेमेंट. पेमेंट में सबसे पहले परचेज में कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज. कैश परचेज के लिए अप्रैल का परचेज है 3,50,000. 3,50,000 के 40% है वो कैश परचेज है, यानी कि 1,40,000, और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट. तो टोटल अल्टीमेटली अमाउंट आएगी 1,33,000. ऐसे ही मई और जून का निकालेंगे तो आंसर आएगा 1,52,000 एंड 1,71,000 फॉर द जून. अब क्रेडिट परचेज की बारी आई. अब कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन देख लेते हैं. क्रेडिट परचेज का लेट पीरियड है 1.5 मंथ. क्रेडिट परचेज का पीरियड कितना है 1.5 मंथ. तो स्टार्ट करेंगे मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. जो पहले 15 दिन, हाफ मंथ यानी कि 15 दिन है, ठीक है. तो पहले का हाफ मंथ है वो हम कब पे करेंगे, दूसरे हाफ मंथ में. और दूसरे हाफ मंथ का कब पेमेंट करेंगे, अप्रैल के पहले में. और अप्रैल का फर्स्ट 15 डेज यानी कि 1.5 ऑफ द दैट मीन्स 1.5 ऑफ द मार्च, एंड उसके फर्स्ट हाफ का पेमेंट करेंगे हम सेकेंड हाफ में, यानी कि 1.5 ऑफ द अप्रैल इटसेल्फ. ऐसे ही बाकी के हाफ का पेमेंट करेंगे मई में, और हाफ पेमेंट उसी मंथ के लिए 1.5 मंथ ऑफ द मई एंड 1.5 मंथ ऑफ द जून. ऐसे कैलकुलेशन आएगी. तो हमें करना है अप्रैल का, अप्रैल का हाफ मार्च का, हाफ अप्रैल का. परचेज देख लेते हैं. मार्च का है 3 लाख रुपीज़, बट उसमें से क्रेडिट कितना है 60%. सो 3 लाख रुपीज़ के 60% कितना आया 1,80,000. उसका भी हाफ 90,000. अब अप्रैल का है 3,50,000. उसके 60% क्रेडिट परचेज है 2,10,000. उसका भी हाफ 1,05,000. टोटल इज 1,95,000. This is the credit purchase of the month of the April. सिमिलरली मई और जून के लिए भी करेंगे तो आंसर आएगा 2,25,000 एंड 2,55,000. ऐसे ही करना है. मई का आएगा 1.5 ऑफ द अप्रैल, 1.5 ऑफ द मई. देन ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा 2,25,000 एंड 2,55,000. राइट. उसके बाद है ओवरहेड. बट ओवरहेड में एक एडजस्टमेंट है. ओवरहेड में एडजस्टमेंट क्या है कि क्वार्टरली डेप्रिशिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट इज 45,000.
इट इज़ एडेड इन ओवरहेड, ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऐड किया है जो नहीं होना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने से पहले किस मंथ में कितना माइनस करेंगे वो हमें नहीं पता है, तो हमें दिया गया है 45,000 फॉर द क्वार्टरली डेप्रिसिएशन, यानी कि 3 मंथ का टोटल 45,000 है। तो एक मंथ का हमें फाइंड करना हो तो 15,000 आ जाएगा, 3 महीने का 45,000, तो 1 मंथ का 15,000 हुआ। तो हर एक मंथ में ओवरहेड 15,000 माइनस कर देंगे, ओवरहेड का 15,000 फॉर द डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी का जो भी पेमेंट होगा वो देख लेते हैं। टाइम लेग पीरियड फॉर द ओवरहेड इज 1.4 मंथ, क्या है 1.4 मंथ। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओवरहेड मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। 1/4 और 3/4, और बाकी का 1/4 होगा मार्च का, और बाकी का 3/4 होगा अप्रैल का ही। ऐसे ही 1/4 ऑफ द अप्रैल, 3/4 ऑफ द मई। ऐसे ही जून में 1/4 ऑफ द मई, 3/4 ऑफ द जून खुद का। ऐसे ही पहली बार भी हमने ऐसा ही कैलकुलेशन किया है, ऐसा ही कैलकुलेशन करना है ओवरहेड में। स्टार्ट करते हैं अप्रैल से। अप्रैल में 1/4 ऑफ मार्च, मार्च का कितना है 50,000। पहले तो 50,000 में से 15,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वो हो गया 35,000। सो 35,000 का 1/4 8750, उसमें ऐड होगा 3/4 ऑफ अप्रैल। अप्रैल का कितना है 62,500, उसमें से पहले तो 15,000 डेप्रिसिएशन है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आ गया 47,500 का 3/4, 35,625। टोटल करेंगे 44,375। तो ओवरहेड की अमाउंट कितनी हो गई 44,375। ऐसे ही हम मई और जून के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 56,875 एंड 69,375। ऐसे ही कैलकुलेशन करना है फॉर मार्च एंड अप्रैल। ऐसे ही अप्रैल मई में आएगा 1/4 ऑफ द अप्रैल, 3/4 ऑफ द मई, ऐसे ही जून में, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली इंटरेस्ट पेएबल है 3 लाख रुपीज़ का ऑन डिबेंचर 10%। इट इज़ अ क्वार्टरली इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड जुलाई। सो हमारे में अप्रैल मंथ ही है, जुलाई नहीं है, तो अप्रैल का देख लेते हैं। 3 लाख रुपीज़ इंटू 10% इंटू 3/12, 3 मंथ का, यानी कि 7,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देन लास्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 विच इज पेड ऑन द 7th day ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सैलरी विल बी इंक्रीज एट अ रेट ऑफ द 10% फ्रॉम द मंथ ऑफ द मार्च। मार्च से 10% सैलरी बढ़ाई गई है, और उसका पेमेंट कब होगा 7 day ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 7 days यानी 1 week, 7 day यानी 1 week। सो 1/4 एंड 3/4 जैसे करते हैं हम वैसे ही कैलकुलेशन होगा, बट पहले तो अमाउंट देख लेते हैं। तो अमाउंट क्या होगी 10,000 रुपीज़ थे मार्च में, 10% बढ़ गई, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 बन गया 11,000। वो तो कब पेमेंट होगा इन द नेक्स्ट मंथ ऑन द डे ऑफ द 7th, यानी कि मार्च का जो पेमेंट होगा वो पे कब होगा अप्रैल में। अप्रैल की कौन सी डेट में होगा 7, वो तो कोई भी डेट में हो, आएगा किस में अप्रैल में, राइट। सो सैलरी
11,000. अब अप्रैल मंथ की मई में पे होगी, मई की जून में. सो सैलरी विल बी रिमेन 11,000, 11,000, 11,000. Now we have covered almost all the things of the payment. Let's total the total of the payments. It will come 1,33,000 plus 1,95,000 plus 44,375 plus 7,500 plus 11,000. 3,19,875 A minus B. 49,625. It will go here. And last balance we will get from in the month of the May 78,750, and at the end of the June we will get 1,55,330. Right? You can calculate it. It will come same. Right? You have to calculate. Okay? Thank you.